we have completed till question number 6 in the previous video. In this video we have to start question number 7. So triangle is given, साथ ही साथ draw कर दीजिए जल्दी. A triangle is given. Name of the triangle PQR. PQR is a triangle. Inside a triangle another triangle is given. Name of this triangle is ABC. A point is there at the center. O. Right. So these lines are parallel. We have to start from what is given. So first draw the triangle and see in the adjacent figure ABC are the points on OP and OQ, OR respectively. Okay, and such that AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. So we have to show that. What do we have to prove? BC is parallel to QR. This is what is supposed to be proven. Correct? So where do we start the problem from? From O. In the sense, first of all understand what are the two lines which are parallel. AB, where is AB? Yeah, this is A, this is B. This line AB and PQ. AB and PQ. Which is the tallest one? PQ. Which means in this triangle P and Q will always be there. What is the next point along with PQ? PQ and O. Extend the two parallel lines. They will meet at, they will end up to a single point. What is this point? O. So O, PQ. POQ or OPQ, what this triangle we are talking about. In this triangle, where do we have to start from? PQ or O? From where do we have to start from? O, single point. How do we consider that point? Two parallel lines ending at the one point. That particular point is taken into consideration. From O we have to start. OA by AP. OB by BQ. Right. In triangle, what is the triangle? OPQ. In triangle OPQ, we have to start from O. OA by AP. OA by AP is equal to OB by BQ. By using basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, name this equation 1. Now, what are the two lines which are parallel? AC. AC. What is AC? AC is parallel to PR. Which is the tallest? PR. PR will always be there. And extend PR. Where are they meeting at? O. So again POR. In triangle POR. In triangle POR, where do we have to start from? O. OA by AP. OA by AP is equal to OC by CR. This is again with respect to basic proportionality theorem and name this at equation 2. What are the common terms? OA by AP. OA by AP is there. So OB by BQ is equal to OC by CR. OB by BQ, this is Q, is equal to OC by CR. Right. What do you have to prove? BC is parallel to QR. Where is BC? This one. BC is parallel to QR. Which triangle he is talking about? BC and QR. We have to prove that these two lines are parallel. Which triangle is talking about? OQR. If we have to prove that BC is parallel to QR, sides should be proportional. Is it there? OB by BQ, OC by CR. Sides proportion में हो गया तो lines parallel. Converse of BBT के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? Therefore, BC is parallel to QR. Converse of basic proportionality theorem. Hence proof. Copy कर लो. नहीं CBT एक शॉर्ट ही लिखना, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं. बेसिक में अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल. साइड्स ये इसके साथ ये यहाँ पर बेसिक यहाँ पर बीपीटी यूज कर देखो पहला. साइड्स प्रोपोर्शन में है ये यहाँ पर देखो ये कौन सा है? OA बाई AB. यहाँ पर कई के लिए लिख सकते हैं पहला लाइंस पैरेलल है. लाइंस पैरेलल है. लाइंस पैरेलल है अपने को मालूम दे दिया था उन्हें. लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन. लाइंस पैरेलल कैसा मालूम हो रहा? क्वेश्चन में दे दिया उन्हें. क्वेश्चन में दे दिया AB इज PQ. AB और PQ दोनों पैरेलल है बोल के बोल दिया. अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में, ये साइड में प्रोपोर्शन में बीपीटी के हिसाब से ये दो लाइन पैरेलल है. अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में, ये साइड प्रोपोर्शन में. लाइंस पैरेलल है साइड्स प्रोपोर्शन में. हाँ एक आगे तो दूसरा था लाइंस पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शन. यहाँ तक ये दोनों में से एक हटा दो, साइड्स प्रोपोर्शनल लाइंस पैरेलल. यहाँ से ये दो ट्रायंगल की मदद से कंडीशन बनाए, इसके कंडीशन से यूज करके ये ट्रायंगल बना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट. हाँ क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा
ABCD is a trapezium. A, B, C, D is a trapezium. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. This line and this line are parallel. Next, its diagonal intersect at O. These diagonals will intersect at O. What are the diagonals? First of all, you have to understand about basic things about trapezium. Trapezium किसको बोलते हैं? एक ऐसा फिगर जिसमें दो लाइना पैरेलल है ना, दो लाइना पैरेलल है ना, ऐसा पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं. जैसे कि देखो ये भी ट्रेपेजियम हो गया, ये भी एक ट्रेपेजियम हो गया. दो लाइंस पैरेलल रहते हैं, दो लाइंस पैरेलल, एक लाइन दूसरे के पैरेलल रहती है ऐसा. देखो ये भी एक ट्रेपेजियम है. ऐसा इधर एंडिंग में स्ट्रेट एक्सटेंड हो रहा है या फिर कॉर्नर में स्ट्रेट लाइन आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को. ये दो लाइन से फर्क नहीं पड़ता, खाली दो लाइन पैरेलल होना कंडीशन है. ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है. ऐसा ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल है ना, तो बेसिकली ट्रेपेजियम का ये फिगर बना लो. ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल है. कौन से ए बी और सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. और क्या बोला उसमें? डायगोनल्स. डायगोनल्स किसको बोलते हैं? कॉर्नर वाले पॉइंट्स को, ये पॉइंट कनेक्ट करने वाले लाइनों को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ. AC is one of the diagonal and BD is another diagonal. These diagonals intersect at O. O के पास intersect करते करते. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट आपने को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट AO by BO is equal to CO by DO. ये प्रूफ करना है. ठीक है, इसके क्वेश्चन में याद रखो क्या करना पड़ता? एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन. We have to do a little extra construction to get on to the solution of this problem. What do we have to do here? क्या करना पड़ता? एक्स्ट्रा अपने कंस्ट्रक्शन करना पड़ता. यहाँ पर देखो OA है ना, या AB और CD पैरेलल है. AB और CD पैरेलल है. एक और अपन ऐसी लाइन बना रहे हैं, बीच में अपन खुद पैरेलल लाइन बना रहे हैं. यहाँ पर ये लाइन कौन सी है? ABCD. दे देंगे इसको नाम, E नाम हो गया. यहाँ पर अब देखो दो अलग अलग ट्रायंगल बनाना है. यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ जो क्या यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में. फर्स्ट AB और EO पैरेलल है, समझिएगा. अपन कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना? कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट OE, कंस्ट्रक्ट बोल के पॉइंट, कंस्ट्रक्शन बोल के पॉइंट लिखो. कंस्ट्रक्ट, हाँ लिखना. अपन जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डॉटेड लाइन से बताना. क्वेश्चन मैंने दे दिया था थिक लाइन से, अपन जो कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से. राइट, क्या कर रहे हैं अपन ना? OE एक पैरेलल लाइन बना रहे. किसके? AB के और CD के. OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD. AB और CD तो पहले से पैरेलल थे. कैसा मालूम हो रहा? ट्रेपेजियम में उन्हें खुद बोल दिया. नहीं, अपन OE बोल के एक लाइन बना रही है. OE की खासियत क्या है? AB के भी और CD के भी पैरेलल है. लाइन राइट तक समझ में आ गया? अब देखो अपन जो लाइन बना रहे हैं ये दो लाइन पैरेलल है. ये दो लाइनों में से एक लाइन अपन यूज करना और जो अपनी लाइन में से एक लाइन यूज करना. मतलब अपन बनाए सो लाइन है और जो दो लाइनों में से एक लाइन यूज करना. OE और AB एक बार यूज करके एक ट्रायंगल की स्टोरी. OE और DC ये यूज करके और एक ट्रायंगल की स्टोरी. अच्छे से देखो, OE ये लाइन है, AB ये लाइन है. दोनों में बड़ी लाइन कौन सी है? AB बड़ी है. मतलब ये ट्रायंगल अपन जो भी कंसीडर करने वाले हैं उसमें AB तो आने जाना कैसा भी. राइट, दो पैरेलल लाइनों को एक्सटेंड कर लेते हो. किधर मीट हो रहा है ना? D के पास, यहाँ मीट हो रहे. तो ABD ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पर. ABD नहीं, ABD यहाँ पर तक आ गए. ABD. अब देखो ABD में OE पैरेलल हो गया ED के. कौन सा सिंगल पॉइंट कहां से स्टार्ट करना? सिंगल पॉइंट O से स्टार्ट करना, D से स्टार्ट करना, A से करना, B से. D कैसा मालूम होता? दो पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दो, जहां मीट हो रहा है ये पॉइंट से स्टार्ट करना था. अपने को आंसर DO क्या है? बोला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता? लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन. ये लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन. जिसको समझ में नहीं आया इधर देखो, ये ट्रायंगल के अलग अपन इसमें इसकी बात कर रहे हैं. ऐसा ट्रायंगल है वो अलग. यहाँ पर ये A है, ये B है, ये O है, ये E है, ये D है. राइट, ये ट्रायंगल के अंदर ये दो ट्रायंगल्स क्या बोलते हैं? लाइंस पैरेलल है. ये लाइन पैरेलल है. पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल. DO बाई OB, DE बाई EA. कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? पहला इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में DE बाई EA, DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई BO. लिख लेंगे उसको. कहीं को लिख ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर लास्ट में O आ रहा बोल के. हर क्वेश्चन में लास्ट में O दिख रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल. राइट, अब यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना? ये देखो दो लाइन पैरेलल थे. दो लाइन पैरेलल में से एक लाइन वो यूज करे, एक अपनी पैरेलल लाइन यूज करे. अब ये बार AB हटा दो और एक लाइन कौन सी है? DC और EO. हर क्वेश्चन में दो लाइनों ने पैरेलल दे रहा था. ये क्वेश्चन में अपन बना रहे
ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइनों के बीच में अपन और एक पैरेलल लाइन बनाए। पहली बार वो दो पैरेलल में से एक उसकी लाइन एक अपनी लाइन इस्तेमाल करके ट्रायंगल निकाल रहे। हाँ इस तरह भी बना सकते, अपनी मर्जी रहती है, इस तरह भी बना के करो, आंसर होता है चाहता। नेक्स्ट, अब ये बार कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं पहला, ईओ और डीसी। अब ये बार ईओ और ए बी इस्तेमाल करके ये ट्रायंगल ले लेके आए थे। अब ये ईओ और डीसी, ईए और डीसी, हाँ दोनों में बड़ी लाइन कौन सी है, डीसी। तो डी और सी तो पॉइंट आने से आना है जो भी ट्रायंगल में। दो पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं तो कहां मिल रहा है, ए के पास। तो ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल की बात चल रही है। देखो इधर सेपरेटली इधर ड्रॉ करके बता रहा हूं, ऐसा है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन इधर ए, ये डी, ये सी, ये ई, ये ओ, लाइंस पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन, कौन से साइड्स, ए ई बाई ई डी, ए ओ बाई सी ओ लिख लेंगे उसको। चलो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ। चलो राइट, ये इक्वेशन ये बीपीटी के हिसाब से लिख रहे हैं, ये भी बीपीटी के हिसाब से। हाँ इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अच्छा अब इधर देखो, फर्स्ट वाला निकाल सकते, थोड़ा नहीं निकाल सकते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डीई और ईडी दो भी सेम ही है, मगर यहाँ ईडी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, ई और ए ई सेम ही है, मगर यहाँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, दोनों में किसी एक को पलटाना, रेसिप्रोकल करेंगे इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाता, ए ई बाई, इसके हिसाब से लिखेंगे ई डी, सेम दिखेगा ए ई और दो भी रेसिप्रोकल के साथ उसको अल्फाबेट भी चेंज कर ले रहा हूँ सो दैट सिमिलर दिख सके बोल के, राइट। ए ई बाई डी ई इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको रहने दो वैसे, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, राइट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सेम ऐसे वालों को हटा देके जो सेम नहीं है वो लेके चलना। कौन सा, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई, दोनों भी इन्हें और इन्हें इक्वल है, तो पहले ए वाला ए सी पहले फिर बाद में बी डी, तो ए लेफ्ट हैंड साइड में आना है बोल के उस हिसाब से देके लिख लिया, राइट। अब अपने को ए ओ बाई बी ओ होना था, सी ओ आया, सी ओ बाई डी ओ, मतलब इन्हें उधर जाना उन्हें इधर आना, डिवीजन का टर्म मांग गया तो मल्टीप्लीकेशन टर्म इधर आया तो डिवाइड, खत्म। ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। समझ में आ गया? 4-6 को आता है, 2 को नहीं आता। समझ में आ गया?